A very good afternoon, students. In this video lecture we will discuss about multi-level inverter. So let us discuss first what are the concept of multi-level inverter. As you can see in this waveform, this is your two-level output waveform, and if you want plus VDC by 2, then this switch is on and this switch is off. Then the conducting nature of this mode is something like this. Similarly, if you want minus VDC by 2, then this switch is off and this switch is on, right? Then conducting nature of this mode is something like this. Okay, so this is your single phase half bridge inverter, जहाँ पे हम लोग ने IGBT को यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ थायस्टर, बिकॉज थायस्टर हम लोग को फोर्स कम्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती थी, एंड इन केस ऑफ IGBT वी नीड सेल्फ कम्यूटेशन, राइट. एंड ऑल्सो यहाँ पे हम लोग ने IGBT के एंटी पैरेलल में डायोड लगाया है, जिसको हम लोग फीडबैक डायोड बोलते हैं. वाई इट इज कॉल्ड फीडबैक डायोड? बिकॉज द एनर्जी इज फेड बैक टू द DC सोर्स व्हेन दीज डायोड्स आर कंडक्टिंग, right? It depends upon the nature of the load. Similarly, this is your 3-level output waveform, and why it is called 3-level? Because we get the output plus VDC by 2 for some instant, then 0 again for some instant, and minus VDC by 2 for some instant. So this output waveform will be generated with the help of full bridge inverter, or we can say edge bridge inverter, right? Then this is your 5-level output waveform, because we get the output voltage plus VDC by 2, VDC by 4, 0, minus VDC by 4, minus VDC by 2. And similarly, this output waveform is 7-level, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So what are the concept behind a multi-level inverter? जैसा कि आप waveform में देख सकते हो, compare कर सकते हो. अगर हम 2 level 7 level से compare करें, so अगर यहाँ पे 7 level आप देख सकते हो, it's approaching to sinusoidal waveform. So that's why यहाँ पे हमारा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है. दैट्स वाई अगर हम नंबर ऑफ लेवल्स को इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं, देन हमारा THD शुड बी रिड्यूस्ड, राइट? दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेवल इन्वर्टर. सो वाई वी नीड फॉर मल्टी लेवल इन्वर्टर इफ वी हैव अ 2-level इन्वर्टर? सो बेसिकली देयर आर 2 ड्रॉबैक्स. जो मेन ड्रॉबैक्स है आपके, फर्स्ट वन इज दैट इज हाई dV/dt इन द इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज. अगर हम लोग 2-level इन्वर्टर की बात करें तो ऑब्वियसली जो हमारे पास वेवफॉर्म क्रिएट होगा समथिंग लाइक दैट, ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग को dV/dt एट द राइजिंग एंड फॉलिंग एज पे देखने को मिलेगा, राइजिंग एंड पॉइंट, सिमिलरली फॉलिंग, सिमिलरली दिस वन राइजिंग, एंड सो ऑन. So there is some problem because of these rise and fall edges of the inverter. It may be premature failure of the motor winding insulation and so on. And the second drawback is motor harmonic losses. In case of 2-level inverter, we can use switching frequency approximate around 500 Hz. It may be 1 kHz depend on किस टाइप का हम लोग यहाँ पे स्विच यूज़ कर रहे हैं, राइट? सो रिजल्टिंग हार्मोनिक कंटेंट जो आपका होगा इन स्टेटर वोल्टेज एंड करंट विल बी मोर, जिसकी वजह से जो हार्मोनिक प्रोड्यूस होगा एडिशनल पावर लॉसेस इन द मोटर. सो फॉर रिमूविंग दीज 2 ड्रॉबैक, यहाँ पे हम लोग लार्ज साइज LC फिल्टर इंस्टॉल करेंगे एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द इन्वर्टर. सो अगेन LC फिल्टर इंस्टॉल कर रहे हैं, सो देयर इज सम डिसएडवांटेज यूजिंग LC फिल्टर. फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा इंक्रीज होगा. Second one is voltage drop, fundamental voltage drop will be there, and the third one is circulating current between the filter and DC circuit, जिसकी वजह से हमारी efficiency आपकी एक तरीके से decrease होगी, right? So what is a multi-level inverter? So अगर हम इसको define करें, multi-level inverter include an array of power semiconductors and capacitor voltage sources, the output of which generate voltage with step waveform. जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो एक स्टेप के फॉर्म में हमको मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो वेवफॉर्म है नियरली टू साइनोसॉइडल अप्रोच कर रहा है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे तीनों फिगर को अगर आप कंसीडर करें, किस तरीके से हमको स्टेप वेवफॉर्म मिल रहा होगा. सपोज दिस इज योर स्विच, राइट? एंड अगर ये यहाँ से कनेक्टेड हुआ तो ऑब्वियसली प्लस VC मिलेगा. इफ़ अगर इससे कनेक्टेड हुआ तो 0 मिलेगा. सिमिलरली यहाँ पे अगर माइनस VC के लिए हमारे पास हो, राइट? सो ऑब्वियसली माइनस VC मिलेगा. सो
फ्रॉम फिगर ए हमको यहाँ पे 3 लेवल इन्वर्टर मिल सकता है. सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये इससे कनेक्टेड होगा सो ऑब्वियस है 2 टाइम्स ऑफ वी सी, देन 1 टाइम्स वी सी, देन 0 and so on for negative cycle. So this is for 3 level, this is for 5 level, this is for n level. Is that clear? So this is the definition of multi-level inverter, right? So the most attractive feature of multi-level inverter आपका क्या है? Multi-level inverter are the preferred choice in industry for the application in high voltage and high power applications. So what are the advantages of multi-level inverter? High voltage can be generated using the device of lower rating, obvious, and increased number of voltage level produce better voltage waveform and जिसकी वजह से आपका TSD should be reduced, right? So number of level हमारा अगर increase करते जाएंगे तो obvious हमारा TSD should be reduced. Switching frequency can be reduced for the PWM operation. एक्चुअली हम लोग का जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है इन केस ऑफ इन्वर्टर, फॉर इन्वर्टर की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर डिवाइस की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की हम बात करें वो हमारी डिक्रीज हो रही है अगर हम 2 लेवल इन्वर्टर से कंपेयर करें. सो नेक्स्ट वन इज दैट इज मल्टी लेवल इन्वर्टर टोपोलॉजी, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द मल्टी लेवल देयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज डायोड क्लैम्प, सेकेंड वन इज फ्लाइंग कैपेसिटर एंड जिसको हम लोग कैपेसिटर क्लैम्प भी बोलते हैं. थर्ड वन इज कैस्केडेड एज ब्रिज मल्टी लेवल. सो अकॉर्डिंग टू इफ वी हैव सिंगल डीसी सोर्स देन ये 2 टाइप के आपके मल्टी लेवल इन्वर्टर होंगे. इफ वी हैव मल्टीपल डीसी सोर्स और वी कैन से वी यूजिंग मल्टीपल डीसी सोर्सेस then this type of inverter is called cascaded edge bridge multi level inverter, right? And again cascaded edge bridge multi level inverter आपके 2 टाइप के होंगे. फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल एंड सेकेंड वन इज असमेट्रिकल कैस्केडेड एज ब्रिज मल्टी लेवल. अगेन कैस्केडेड का मेन ड्रॉबैक यहीं से अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, मल्टीपल डीसी सोर्स हमको यहाँ पे यूज करना पड़ा. दैट्स द मेन ड्रॉबैक, राइट? नाउ फर्स्ट वन इज दैट इज डायोड क्लैम्प मल्टी लेवल इन्वर्टर. ठीक है, दिस इज योर 3 लेवल डायोड क्लैम्प मल्टी लेवल इन्वर्टर जहाँ पे हमको आउटपुट वेव फॉर्म आप देख सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कुछ इंस्टेंट के लिए मिल रहा है. तो ऑब्वियसली 3 लेवल आउटपुट वेव फॉर्म हमको मिल रहा है, राइट? सो दीज 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कॉल्ड सीरीज कनेक्टेड बल्क कैपेसिटर इसको हम लोग बोलते हैं, राइट? एंड जो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म हमको मिलेगा प्लस VDC/2, 0 एंड माइनस VDC/2. सो ये प्लस VDC/2 माइनस VDC/2 एंड 0 कैसे ऑब्टेन होगा इसको हम लोग देख लेते हैं. सो इफ S1 एंड S2 are on and these 2 switches are off, right? Then the conducting nature of this mode will be something like this. ये आपका यहाँ पे लोड लगा होगा एंड अगेन बैक टू द न्यूट्रल. ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ लोड के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज होगा दैट शुड बी द प्लस VDC/2 क्योंकि डायरेक्शन आपका करंट का दिस वन, राइट? सिमिलरली if S1 dash and S2 dash should be on and ये दोनों आपके अगर ऑफ हैं then जो आपका कंडक्टिंग नेचर ऑफ मोड होगा दिस टाइम समथिंग लाइक दैट. अगेन लोड के थ्रू होते हुआ S1 dash S2 dash एंड बैक टू द C2. तो आप देख सकते हैं दिस टाइम आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस हमको माइनस VDC/2 यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है. सो प्लस VDC/2 के लिए S1 S2 ऑन रहेगा एंड S1 dash S2 dash आपका ऑफ रहेगा. माइनस VDC/2 के लिए आपका S1 dash S2 dash ऑन रहेगा एंड सिमिलरली जो आपके S1 और S2 हैं वो आपके ऑफ होंगे, राइट? एंड फॉर ज़ीरो के लिए हमारे लिए जो ये दोनों स्विच हैं दैट इज S2 एंड S1 dash ये दोनों ऑन रहेंगे. सो हाउ वी गेट ज़ीरो आउटपुट आप देख सकते हैं दीज 2 डायोड्स जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैम्पिंग डायोड. ठीक है, क्लैम्पिंग मीन्स दैट इज ये वोल्टेज को होल्ड कर रहा है. वी कैन से आउटपुट वोल्टेज यहाँ से हमको 0 मिल रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द लोड करंट, ठीक है, सपोज आपका करंट का डायरेक्शन दिस वे है, राइट? सो D1 से होता हुआ S2 स्विच से होता हुआ एंड बैक टू द दिस वन, राइट? सपोज करंट का डायरेक्शन रिवर्स है सो ऑब्वियस है दिस टाइम आपका वेट अ मिनट, दिस टाइम आपका करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ. सो S1 dash होता हुआ D1 dash एंड बैक टू द न्यूट्रल, राइट? आपका कुछ इस तरीके से ये आपका कंडक्टिंग मोड रहेगा. सो मूविंग फॉरवर्ड, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर वोल्टेज लेवल VDC/2 S1 S2 को हम ऑन रखेंगे.
फॉर माइनस वी डी सी बाई टू S1 डैश S2 डैश हम ऑन रखेंगे एंड फॉर जीरो लेवल S2 एंड S1 डैश यानी जो आपका इनर पार्ट वाले जो आपके स्विचेस हैं उनको हम ऑन रखेंगे, ठीक। एंड डायोड जो आपका D1 एंड D डैश है उसको हम लोग क्लैंपिंग डायोड बोलते हैं बिकॉज इट होल्ड्स अ आउटपुट वोल्टेज, राइट। सो एडवांटेज क्या है, नो डायनेमिक वोल्टेज शेयरिंग प्रॉब्लम जो कि हमको सेकेंड मल्टी लेवल इन्वर्टर दैट इज कैपेसिटर क्लैम्प में देखने को मिलेगी। एंड लो TSD एंड DVT बाई DT यहाँ पे मिल रहा है जो कि नॉर्मली 2 लेवल में हमारा हाई रहता है, तो ऑब्वियसली TSD भी हमारा रिड्यूस हो रहा है बिकॉज हम लोग ने जो वेवफॉर्म क्रिएट हो रही है वहाँ पे नियरली अप्रोच टू साइनसॉइडल। एंड ऑल्सो DV/DT भी हमारा रिड्यूस हो रहा है क्योंकि पर्टिकुलर डिवाइस में जो आपकी स्विचिंग फ्रिक्वेंसी उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, यानी जो फास्ट स्विचिंग वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पर रिड्यूस हो गई। एंड द थर्ड एडवांटेज इज द कंट्रोल मेथड इज रिलेटिवली सिंपल। नाउ डिसएडवांटेज की बात करें, अनइवन लॉस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिवाइस, राइट। So in a fundamental cycle, the conduction period of the inner device is more than the outer device. This cause unequal losses in device. ठीक है, सो आप सर्किट डायग्राम पे यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। फॉर प्लस VDC/2 के लिए S1 S2 ऑन था, माइनस VDC/2 के लिए S1 डैश S2 डैश आपका ऑन था, एंड फॉर जीरो के लिए S2 एंड S1 डैश आपका ऑन, यानी ये कम्प्लीटली हमको ऑन और वी कैन से कंडक्शन टाइम इन दोनों स्विचेस का ज़्यादा है क्योंकि आपका प्लस VDC में भी और जीरो में भी दे रहे हैं, एंड सिमिलरली S1 डैश आपका जीरो माइनस VDC/2 के लिए भी दे रहा है। सो ऑब्वियस कंडक्शन जो आपका पीरियड होगा वो इनर स्विचेस के लिए ज़्यादा होगा, दैट्स वाई अनइवन लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिवाइसेस। देन सेकेंड डिसएडवांटेज दैट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ द DC बर्स्ट मिड पॉइंट वोल्टेज, ओके, बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग, उसकी वजह से हमको यहाँ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। देन अनदर डिसएडवांटेज इज एडिशनल क्लैंपिंग डायोड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कंपोनेंट्स हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एंड वन मोर डिसएडवांटेज इज कॉम्प्लिकेटेड PWM स्विचिंग पैटर्न डिज़ाइन, ठीक है। PWM पैटर्न जो हम लोग लॉजिक सर्किट क्रिएट करेंगे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन केस ऑफ डायोड क्लैम्प। नाउ सेकेंड वन इज कैपेसिटर क्लैम्प मल्टी लेवल इन्वर्टर। सो अगेन अगर हम डायोड क्लैम्प से कंपेयर करें ऑलमोस्ट आपका सर्किट सेम है, बट दिस टाइम हम लोग डायोड क्लैम्प की जगह और वी कैन से क्लैम्पिंग डायोड की जगह यहाँ पे हम लोग ने कैपेसिटर यूज़ किया, जिसको हम लोग कैपेसिटर क्लैम्प भी बोलते हैं और फ्लाइंग कैपेसिटर भी बोलते हैं। क्यों फ्लाइंग कैपेसिटर बोलते हैं अभी क्लियर हो जाएगा आप लोग को। सो अगेन फॉर ऑब्टेनिंग द अगेन दिस इज योर 3 लेवल आउटपुट और वी कैन से 3 लेवल कैपेसिटर क्लैम्प मल्टी लेवल इन्वर्टर फॉर ऑब्टेनिंग द 3 लेवल आउटपुट वेवफॉर्म। For obtaining plus VDC/2 then again S1 S2 will be on and conducting nature बिल्कुल as it is सेम रहेगा जैसा हम लोग ने डायोड क्लैम्प में देखा था। Similarly माइनस VDC/2 के लिए S1 dash and S2 dash will be on, right? And for this time for zero level के लिए right this time हम लोग S2 S1 dash को ऑन ही रखेंगे। now this time आपका जो स्विच ऑन होगा either S1 and S1 dash आपका ऑन होगा, राइट आप ये देख सकते हैं। एंड सिमिलरली या फिर हम कौन सा पेयर यूज़ कर सकते हैं, या तो हम S1 डैश को ऑन रखें बाकी दोनों को ऑफ रखें, या फिर हम S2 एंड S2 डैश को ऑन रखें, राइट। सो दिस टाइम आपका जो कंडक्टिंग नेचर होगा समथिंग लाइक दैट। क्लियर है, ठीक है। तो ऑब्वियस आप देख सकते हो यहाँ पे जब करंट का डायरेक्शन आपका अपवर्ड है तो ऑब्वियस है IGBT तो आपका रिवर्स में, सो ऑब्वियस है यहाँ पे जो आपका एंटी पैरेलल डायोड है वो आपका कंडक्ट करेगा, राइट। सिमिलरली इन प्रीवियस केस में आपका वन ऑफ द स्विच का जो आपका एंटी पैरेलल डायोड है वो आपका कंडक्ट करेगा, ओके। सो आप देख सकते हो फॉर प्लस VDC/2 S1 S2 ऑन नीड टू बी टर्न ऑन, फॉर माइनस VDC/2 S1 dash and S2 dash need to be turned on, and for zero level either S1 S1 dash will be on or S2 and S2 dash needs to be turned on. So actually ये जो दोनों पेयर हैं wait a minute, जो ये दोनों पेयर हैं S1 and S1 dash और S2 और S2 dash, right, ये हमको अगर हम यहाँ पे बात करें इन दोनों पेयर को, हम कब इनको ऑन रखें कब इनको ऑफ रखें, एक्चुअली इनको हमको टाइम टू टाइम चेंज करना होगा इनकी स्विचिंग। कुछ टाइम के लिए हम इसको ऑन रखेंगे एंड कुछ टाइम के लिए हम इसको ऑन रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो हम कैपेसिटर C1 दैट इज़ योर क्लैंपिंग कैपेसिटर, इसके हमको चार्ज और वी कैन से फुली चार्ज ये आपका होना चाहिए, ठीक है। चार्ज और डिस्चार्ज का यहाँ पे हमको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब S1 एंड S1 डैश आपका ऑन है
सो ऑब्वियस है ये जो वोल्टेज है C2 के अक्रॉस दैट इज़ VDC/2, वो वोल्टेज इसके अक्रॉस आ गया, दैट्स वाई हमको आउटपुट वोल्टेज 0 मिला। तो ये वोल्टेज आपका मेंटेन रहे, दैट्स वाई ये स्विचिंग हमको यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज करनी पड़ेगी, राइट। नाउ एडवांटेज की बात करें, लार्ज एम लेवल अलाउ द कैपेसिटर एक्स्ट्रा एनर्जी ड्यूरिंग लार्ज डिस्चार्ज ट्रांजिएंट, ठीक है। रियल एंड एक्टिव पावर हम कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लैक्सिबल स्विचिंग रिडेंसी है, स्विचिंग रिडेंसी जो कि अभी हम लोगों ने बात किया, इन केस ऑफ जीरो लेवल हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कोई सा भी हम पेयर यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट एडवांटेज जो कि हर एक मल्टी लेवल का एडवांटेज है, दैट इज लोअर THD विथ नंबर ऑफ लेवल एंड ऑल्सो लो dV/dt, राइट। नाउ द डिसएडवांटेजेस, मेन डिसएडवांटेजेस का जो है, लार्ज कैपेसिटर हमको यूज़ करना है, जो एक्स्ट्रा कैपेसिटर हमने यूज़ किया विच आर बल्की एंड जनरली मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू क्लैम्पिंग डायोड, राइट। एंड पैकेजिंग जिसकी वजह से हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट होती है विथ हाई नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है। नाउ कॉम्प्लेक्स कंट्रोल जो कि डायोड क्लैम्प में भी देखने को मिला था। देन पुअर स्विचिंग यूटिलाइजेशन, अगेन जो कि हमारा डायोड क्लैम्प का भी डिसएडवांटेज था, दैट इज योर अनइवन पावर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। Then third one, that is your cascaded edge bridge multi-level inverter. So this topology is based on the series connection of single phase inverter with separate DC source. जैसा कि आपको इस फिगर डायग्राम में दिख रहा होगा, दिस इज योर फुल ब्रिज इन्वर्टर जिसको हम लोग एज ब्रिज इन्वर्टर भी बोलते हैं। सो आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए। If we want plus VDC or we can say we want plus VDC/2, ठीक है, यहाँ पे VDC हम लोग ने यूज़ किया, सो प्लस VDC। सो ऑब्वियस है T1 एंड लेट अस टेक, ये T4 नेम है, T1 एंड T4 आपका ऑन होगा। सिमिलरली फॉर गेटिंग द आउटपुट वोल्टेज माइनस VDC, देन आपका ये दोनों आपके दैट इज T3 एंड वी कैन से T2 एंड T3 आपके ऑन होंगे, राइट। एंड फॉर ऑब्टेनिंग द आउटपुट वोल्टेज 0, ऑब्वियस है आइदर ये दोनों पेयर हमारे ऑन हो या फिर हमारे ये दोनों पेयर ऑन हो। सो आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, राइट। नाउ फॉर मल्टी लेवल इन्वर्टर, यहाँ पे हम लोग एज ब्रिज और वी कैन से 2 एज ब्रिज यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो कि विच आर कनेक्टेड इन कैस्केडेड। सो आप देख सकते हो, फॉर सपोज लेट अस सपोज यहाँ पे हमको 5 लेवल इस 2 एज ब्रिज से यहाँ पे मिल रहा है, तो 5 लेवल के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक 2 times VDC, right, and similarly plus VDC, similarly 0, then minus VDC, then similarly minus 2 times VDC, right. So let us take इसका जो वोल्टेज है VDC है, and similarly जो सेकेंड एज ब्रिज का जो वोल्टेज है अगेन let us take VDC है, right. So obvious है, यहाँ से आप देख सकते हो अगर हम सिंगल एज ब्रिज की बात करें तो प्लस VDC 0 माइनस VDC मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम इस सिंगल एज ब्रिज की बात करें तो यहाँ से भी हमको प्लस VDC माइनस VDC एंड 0 मिलेगा। सपोज यहाँ से भी हमको प्लस VDC मिल रहा है, यहाँ से भी हमको प्लस VDC मिल रहा है, तो ऑब्वियस टोटल आउटपुट वोल्टेज एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट हमको 2 times VDC मिलेगा। एंड सिमिलरली फॉर ऑब्टेनिंग प्लस VDC, तो यहाँ से हम प्लस VDC ले लेते हैं एंड यहाँ से हम 0 ऑब्टेन कर लेते हैं। सो ऑब्वियस 0 ऑब्टेन करने के लिए आइदर ये दोनों पेयर आपके ऑन होंगे एक साथ या फिर ये दोनों पेयर एक साथ आपके ऑन होंगे, राइट। सिमिलरली माइनस VDC के लिए यहाँ से हम लोग माइनस VDC ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग 0 ले लेते हैं, या फिर हम यहाँ से माइनस VDC ले सकते हैं, यहाँ से हम 0। सो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, यानी स्विचिंग रिडेंसी यहाँ पर रहेंगी। सिमिलरली -2 VDC, माइनस VDC, माइनस VDC। सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो द रिजल्टिंग आउटपुट वोल्टेज स्विंग फ्रॉम प्लस VDC टू माइनस VDC फॉर 3 लेवल and 2 VDC to -2 VDC for 5 level, and the staircase waveform is nearly sinusoidal, right. Now, so what are the advantage of cascaded edge bridge multi-level inverter? First one is that is it is modular in nature, ठीक है। Obviously हमारा जो multi level inverter is composed of multiple unit of identical edge bridge power cell, right, so which leads to a reduction in manufacturing cost, obvious है। एंड सेकेंड वन इज जो हर एक मल्टी लेवल इन्वर्टर का एडवांटेज है, दैट इज लोअर THD एंड dV/dt, राइट। सो एंड द थर्ड वन इज दैट इज हाई वोल्टेज ऑपरेशन विदाउट स्विचिंग डिवाइसेस इन सीरीज। ऑब्वियस हम यहाँ पे एज ब्रिज को कनेक्टेड करते जाएंगे कैस्केडेड में और हाई वोल्टेज ऑप्टेन कर सकते हैं, राइट। देन डिसएडवांटेज आपका क्या है, लार्ज नंबर ऑफ आइसोलेटेड DC सप्लाई। अगर हम डायोड क्लैम्प फ्लाइंग कैपेसिटर से कंपेयर करें तो ऑब्वियस है यहाँ पे हमको डिफरेंट DC सप्लाईज के यूज़ करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे लिए वो कॉस्टली होगा, बिकॉज जो हम DC सप्लाई ऑप्टेन करेंगे
with the help of multi-pulse diode rectifier and expensive phase shifting transformer also, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल सिस्टम थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा. देन सेकेंड वन इज़ हाई कंपोनेंट काउंट, ठीक है, स्विचिंग नंबर ऑफ स्विचिंग हमारी इंक्रीज होंगी. फॉर 9 लेवल के लिए लेटेस्ट टेक 64 IGBT हमारा यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक. मूविंग फॉरवर्ड देन जैसा कि मैंने मल्टी लेवल टोपोलॉजी में आपको दिखाया था, दैट इज कैस्केडेड एज ब्रिज मल्टी लेवल इन्वर्टर. दे आर 2 टाइप्स, दैट इज सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल. सो सिमेट्रिकल हम कब बोलेंगे, असिमेट्रिकल हम कब बोलेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. फॉर सिमेट्रिकल मल्टी लेवल इन्वर्टर, और वी कैन से फॉर सिमेट्रिकल कैस्केडेड एज ब्रिज मल्टी लेवल इन्वर्टर, दोनों लेटेस्ट टेक फॉर 2 एज ब्रिज सेल, ठीक है. सो बोथ एच ब्रिज सेल के केस में आपका जब ये वोल्टेज आपका सेम होगा तो ऑब्वियस है वो आपका सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, और वी कैन से सिमेट्रिकल मल्टी लेवल इन्वर्टर कहलाएगा, ठीक है. अगर ये वोल्टेज वेवफॉर्म, और वी कैन से ये डीसी सप्लाई आपकी डिफरेंट है, सपोज ये आपका 100 है एंड दिस शुड बी द 200, तब जाके ये आपका असिमेट्रिकल कहलाएगा. बट प्लीज़ मेक श्योर इनका जो वोल्टेज का जो डिफरेंस है आइदर 1:2 रेशियो में होगा या 1:3 रेशियो में. लेट अस टेक 1:2 रेशियो, जो कि मैंने यहाँ पे लिया 100 and 200. सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ असिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल तो आपने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया, असिमेट्रिकल का यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा. सो अगेन यहाँ पे हम लोग 2 HP यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें असिमेट्रिकल, जब मल्टी लेवल इन्वर्टर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो लेवल है, नंबर ऑफ लेवल्स हैं हमारे, वो हमारे इंक्रीज़ होंगे. हाउ, सपोज यहाँ पे हमको 7 लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट होते हुए दिखेगा आपको. सपोज लेट अस टेक, अगर हमको 300 चाहिए तो ऑब्वियस है दोनों एच बेस से हम लोग DC आउटपुट ऑप्टेन कर लेंगे प्लस के साइन के साथ, +100 +200, सो वी गेट +300. सपोज हमको +200 चाहिए तो ऑब्वियस है यहाँ से हमने 200 लिया, यहाँ से 0 तो +200 मिल गया. सिमिलरली +100 चाहिए तो यहाँ से 100 लिया, यहाँ से 0 +100 मिल गया. सिमिलरली 0 भी ऑप्टेन मिल जाएगा, यहाँ से भी 0 ले लिया, यहाँ से भी 0 ले लिया, अगर इन दोनों को हम ऑन रखेंगे, ठीक है. सिमिलरली -100 के लिए चाहिए -200 एंड -300. सो अगर हम प्रीवियस सर्किट से कंपेयर करें, वहाँ पे हमको मैक्सिमम 5 लेवल मिल रहा था, यानी लेट अस टेक 100 वोल्टेज था तो 200 100 0 -100 -200. एंड इन दैट केस अगर जब असिमेट्रिकल का केस यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, सो देन इन दैट केस +300 +200 एंड +100 0 -100 -200 -300, यानी एक तरीके से हमको 7 लेवल क्रिएट होता हुआ मिल रहा है, राइट. Similarly, next option is for asymmetrical multi-level inverter, or we can say asymmetrical cascaded edge bridge multi-level inverter. That is for 9 level. यही 2 edge bridge को हम यूज़ करके 9 लेवल भी क्रिएट कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे जो DC वोल्टेज सोर्स यूज़ कर रहे हैं 1:3 रेशियो में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये आपका 100 है एंड दिस वन इज़ 300, तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना हो सकता है 300 + 100, दैट इज़ 400. सो 400 ऑप्टेन कर सकते हैं, 300 भी ऑप्टेन कर सकते हैं. आपको पता है कैसे होगा, यहाँ से 300 ले लें, यहाँ से 0. देन 200 के लिए ऑब्वियसली 300, यहाँ से हम ले रहे हैं -100, ठीक है. तो -100 के लिए ऑब्वियसली इन दोनों स्विच को हम ऑन रखेंगे, इन दोनों स्विच को हम ऑफ रखेंगे. एंड सिमिलरली कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम लोग 7 लेवल आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म यूज़ कर सकते हैं. सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल मल्टी लेवल इन्वर्टर एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ असिमेट्रिकल मल्टी लेवल इन्वर्टर. हम लोग ने स्विचिंग डिवाइसेस एज इट इज़ उतना ही लिया, बट यहाँ पे हम लोग ने DC वोल्टेज को चेंज करा, उनके रेशियो को हम लोग ने चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज हो गए. नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज हो गए तो ऑब्वियसली THD भी हमारी रिड्यूस हो गई, राइट. सो कंटिन्यू करें जितनी मैंने यहाँ पे बातें बोली. इन असिमेट्रिकल MLI कैस्केड एज बेस्ड मल्टी लेवल इन्वर्टर, DC वोल्टेज विथ रेशियो बाइनरी एंड टर्नरी, यानी आइदर 1:2 एंड 1:3. सो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं दिस वन. सो आउटपुट वोल्टेज आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा दैट शुड बी द 2 की पावर m+1 -1. सिमिलरली विथ टर्नरी रेशियो देन आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज रीच होगा, दिस इज अ फॉर्मूला, एंड जो वोल्टेज लेवल होगा 3 की पावर n. सिमिलरली ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखें यहाँ पे टू रिप्लेस ऑल द सेपरेट DC सोर्स फीडिंग द एज बेस सेल विथ कैपेसिटर. ऑब्वियस है वहाँ पे DC सोर्स के जो हम कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं. हाउएवर द रिक्वायर्ड कैपेसिटर वोल्टेज बैलेंसिंग इज चैलेंजिंग, जो कि हमको नॉर्मली कैपेसिटर क्लैम्प के केस में देखने को मिलती है, ठीक है. वहाँ पे हमको चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो हमारा, और वी कैन से कैपेसिटर वोल्टेज बैलेंसिंग करना वहाँ पे हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है, राइट. दैट्स इट. आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है.
एनी क्वेरी आप मुझको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।